بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم خانی گلوبل کمیونٹی حاضر خدمت ہے راجہ سرفراز قائم خانی کے پاس۔ راجہ سرفراز قائم خانی کا تعلق کوٹ غلام محمد سے ہے۔ بالفخاص میں کراچی میں حیدرآباد میں آفس ہے ان کا۔ آل پاکستان فرٹیلائزر ایسوسی ایشن سندھ کے صدر ہیں، اور ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ قائم خانی قومی ٹرسٹ کی جو بات ہم کر رہے ہیں عرصہ دراز سے، تو یہ ہمارے گروپ میں ایڈ ہے اور یہ بائیلاس کی بات سنتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان سے ملاقات کا ارادہ کیا اور ان کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جگہ پہ ہمیں بلایا اور قومی بائیلاس کی باتیں ہم نے ان سے کی۔ آج ان کی ٹیبل پہ قومی بائیلاس بھی موجود ہے، تو یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور کوٹ غلام محمد کے اندر بھی کمیونٹی ہالز بھی بنے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک چھپا ہوا پلاٹ بھی وہاں پہ دستیاب ہوا ہے، تو اس لحاظ سے بھی خدمات ہیں، ان کے خاندان کی بھی خدمات ہیں قوم کے بارے میں۔ تو ایک اور میرے ساتھ نوجوان لیڈر بیٹھا ہوا ہے کوٹ غلام محمد کا، اصل قائم خانی، جن کے دادا گلاب خان قائم خانی کا بھی نام ساری قوم کو تقریباً واقف ضرور ہوگی۔ تو میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے چاہوں گا کہ قومی بائیلاس کے حساب سے کوٹ غلام محمد نے ترقی اور ترویج قائم خانی قوم کے حوالے سے، غریب غربا کے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، یتیم و بیواؤں کی مدد کے حوالے سے قومی بائیلاس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس بارے میں یہ روشنی ڈالیں۔ راجہ سرفراز قائم خانی۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ اشفاق صاحب کا کہ آپ اشفاق قائم خانی صاحب تشریف لائے، خاص طور پر یہاں پر راجہ کمپنی پر اپنا ٹائم نکالا میرے لیے اور قائم خانی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جو قوم کے لیے اشفاق خان کی خدمات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، گھومتے رہتے ہیں جگہ جگہ، لوگوں سے رائے لیتے رہتے ہیں، بہتری کے لیے جاتے ہیں ہر جگہ پر۔ تو میرا بھی آج ان سے ملاقات ہو گئی یہاں پر راجہ کمپنی پر۔ تو انہوں نے کوٹ غلام کے حوالے سے جو ہے خاص طور پر مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو ہے قائم خانی کمیونٹی جو ہے اس کی فلاح و بہبود ٹرسٹ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا شہر کی صورتحال ہے اور وہاں پر کس طرح آپ کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ۔ تو جب یہ انہوں نے سوال پوچھا تو میں سچ بات اگر مجھ سے پوچھیں تو میں نے جواب دینے سے قاصر ہوں۔ میں یعنی کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگوں کے جو بڑے ہمیں وراثت میں دے کے گئے، جو پلان دے کے گئے، جو یہ ایک جسے ہمیں سمجھ لیتے ہیں کہ کمیونٹی چیریٹی رولز آئین سمجھ لیں جو ہماری کمیونٹی کا ہے، ہم اس سے بھی انحراف کر کے بیٹھے ہیں اور ہم کوئی ایسا قابل ذکر کام نہیں کر رہے ہیں جس سے ہماری آنے والی نسل ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کرے۔ اور محض نام کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ صرف ہمارے وہاں پہ جو بھی کمیونٹی کے معاملات ہیں وہ ہیں اور کسی بھی طرح سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور گزشتہ 2-3 سال سے نوجوان جو اس معاملے میں اور زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ مسلسل جو ہے فورس کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں اور گیدرنگز ان کی ہو رہی ہیں، اور وہ اس بات کا برملا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب اس میں بہتری آنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ، اور ہم سب لوگوں کو اس کا حصہ بننا پڑے گا۔ تو اشفاق صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ملا ہے ہم اس سے پیچھے جا رہے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں جا رہے۔ تو اب جو ہے میری جو گلوبل کا جو یہ ہمارا چینل ہے اشفاق صاحب ہے، اس کے ذریعے سے کمیونٹی کے جو بھی باڈیز ہیں، ہماری جو ٹرسٹ ہیں، اور جو بھی ہم جہاں بھی ہم لوگوں نے اپنے لیے کمیونٹی کی فلاح کے لیے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں، تو ان تک آواز اگر پہنچ رہی ہوگی تو میں انہیں بتاتا چلوں کہ ہمیں اب تمام چیزوں کو دوبارہ سے صحیح طریقے سے لائن اپ میں لانا پڑے گا۔ ہم اسے زیادہ دن تک روک نہیں سکتے انفرادی یعنی کہ چاہت کے لیے یا انفرادی پروموشن کے لیے یا اپنی پسند ناپسند کے لیے۔ چیریٹی اور ٹرسٹ کا جو بنیادی مقصد ہے جو پوری دنیا میں ہے، جو لوگ ہم سے بہت پیچھے تھے پاکستان قیام پاکستان کے وقت، جو لوگوں کی کوئی پہچان نہیں تھی، آج وہ پاکستان لیول پر نہیں انٹرنیشنل لیول پر اپنے آپ کو منوا چکے ہیں۔ اور ہم لوگ جو اس وقت سب سے آگے ہوتے تھے، ہم آپس کے تنازعات کا شکار ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اصل جو چیریٹی کا مقصد تھا، جو ہمارے اثاثہ جات ہیں یا جو ہمارا
चैरिटी में यानी सरमायादार जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं जो गरीब, बेवा, यतीम, तालिब इल्म के लिए सर्व करता है, वो उनके लिए सर्व करता है और वो उन्हें दे के भूल जाता है, और उसका सिस्टम ऐसा होता है ताकि वो आगे से आगे बढ़कर लोगों के लिए बेहतरी ला सके। जबकि हम इसके बरक्स इस राह पर चल पड़े हैं कि हमने किस चीज़ पे काबिज रहना है और किस चीज़ पे कंट्रोल रखना है। अब ये हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे जो रिटायर्ड सर्विसेज के लोग हैं उन्हें इसमें अंदर दोबारा से आना पड़ेगा, और जो लोग सिर्फ मेडल की तलाश रख के बैठे हैं कि हमें मेडल लगे, हम बड़ी ऊपर कुर्सियों पे बैठे, अब उनसे निकलना पड़ेगा थोड़ा सा माजरत के साथ। ये अब नौजवानों की आवाज़ है, इसे रोकना हमारे लिए सबके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप आगे आएँ, बढ़ें, कुछ आगे बढ़ के करें। तो शुक्रिया। अच्छा, साथ साथ हमारे साथ कोट गुलामों से ये ताल्लुक है, ये असल कायम करनी, तो नौजवान जनरेशन की राय भी जरूरी है कि वो क्या चाहती है। तो इसी सिलसिले में मैं चाहूँगा कि असल कायम खानी नौजवान लीडर कोट गुलाम मोहम्मद को भी अपनी राय दें। मैं इशफाक भाई का शुक्रगुजार हूँ और वो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया और वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और जैसा कि वो बायलाज की बात करते हैं, जो कि असूल की बात करते हैं, जो कि हमारे कौम के बड़े बुजुर्ग बना के गए। एक वक्त था हमारी कौम के पास कुछ ना था, और चंद नौजवान और चंद ऐसे लीडर थे जो कौम के साथ सच्चे और ऑनेस्ट थे। उनकी जद्दोजहद और मेहनत के बाद कौम के पास बहुत सारे असासात आए, बहुत सी चीज़ें आई, हॉस्टल क़याम में लाया गया, कायम खानी हाल बने और बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ ट्रस्ट बना, मगर जो असूल वो बनाकर गए थे और जो रूल्स उनके दौर में चलते थे वो आज कहीं नज़र नहीं आ रहे। चाहे फिर जमसाबाद का कायम खानी हाल हो, चाहे हैदराबाद का ट्रस्ट हो, चाहे कोई भी इदारा, जब तक हम अपने बुजुर्गों के बनाए हुए असूलों पर नहीं चलेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। और जब तक हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहेंगे हम खसारे में जाएंगे, और आने वाली नस्लें जो नौजवान हैं, जिनकी फ्यूचर हैं, जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वो तबाह होंगे, बर्बाद होंगे। तो लिहाजा हम अपील करते हैं, और एक नौजवान अक्सरियत ये चाहती है कि कौम की जो ट्रस्ट के जो मेंबर है वो कौम की राय में एक जिरका लगे, इजलास बैठे, और एक अक्सरियत ये चाहती है कि बायलाज पे अमल हो, और जो हमारे बुजुर्ग कौम के बनाकर असूल गए हैं, जो बायलाज हमें दे के गए हैं, हम उनके मुताबिक चलें। कोई जमसाबाद का शादी हाल हो या एक और प्लाट है, इसके भी मामला जो हमारे बुजुर्ग बायलाज दे के गए हैं इनके मुताबिक नहीं चल रहे। तो हम गुजारिश करते हैं इस चीज़ की, और नौजवान अक्सरियत ये चाहती है कि इस पर अमल दरामद हो, और हम इशफाक भाई का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जो कि ये मिशन लेके चलें और बायलाज की बात करते हैं। इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं और बायलाज की बात करेंगे और हक और सच की बात करेंगे हमेशा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राजा सरफराज साहब का और नौजवान लीडर का। और अनकरीब कायम खानी ग्लोबल कम्युनिटी एक खुशखबरी सुनाएगी कौम को कि हम जैसे ही कोरोना खत्म होता है, नौजवानों का, बुजुर्गों का एक इज्तिमा अनकरीब इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे, जहाँ कौमी बायलाज की बात होगी, असूल व ज़वाबित की बात होगी और कौम की बेहतरी की बात होगी। इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूँ राजा सरफराज साहब का एक दफा फिर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब का कि आप अशफाक कायम खानी साहब तशरीफ़ लाए, खासतौर पर यहाँ पर राजा एंड कंपनी पर अपना टाइम निकाला मेरे लिए और कायम खानी कौम की फलाह बहबूद के लिए। सबसे पहले तो ये जो कौम के लिए अशफाक खान की खिदमत जो है वो सबके सामने है। घूमते रहते हैं, जगह जगह लोगों से राय लेते रहते हैं, बेहतरी के लिए जाते हैं हर जगह पर। तो मेरा भी आज इनसे मुलाकात हो गई यहाँ पर राजा एंड कंपनी पर। तो इन्होंने कोटवाल के हवाले से जो है ख़ासतौर पर मुझसे पूछा कि आपके पास जो है कायम खानी कम्युनिटी जो है उसकी फलाह बहबूद या ट्रस्ट जो है उसके हवाले से आपकी क्या शहर की सूरत हाल है और वहाँ पर किस तरह आप कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं आप लोग। तो जब ये इन्होंने सवाल पूछा तो मैं सच बात अगर मुझसे पूछें तो मैं जवाब देने से कासिर हूँ। मैं यानी कि ये कह सकता हूँ कि हम लोगों के जो बड़े हमें विरासत में दे के गए, जो प्लान दे के गए, जो ये एक
जिसे हम समझ लेते हैं कि कम्युनिटी चैरिटी रूल्स का आइन समझ जो हमारी कम्युनिटी का है, हम इससे भी इनराफ करके बैठे हैं और हम कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी आने वाली नस्ल हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद करे। और महज नाम के हवाले से जो है वहाँ पे सिर्फ हमारे वहाँ पे जो भी कम्युनिटी के मामला हैं वो हैं और किसी भी तरह से कोई एक्टिविटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और गुज़िश्ता 2-3 साल से नौजवान जो है इस मामले में और ज़्यादा एक्टिव हैं। वो मुसलसल जो है फोर्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, इनवाइट करते हैं और गैदरिंग्स उनकी हो रही है और वो इस बात का बड़बड़ा जो है वो चाहते हैं कि अब इसमें बेहतरी आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब इससे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ और हम सब लोगों को इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। तो अशफाक साहब जो है मैं समझता हूँ कि हमें जो मिला है हम उससे पीछे जा रहे हैं, हम उससे आगे नहीं जा रहे हैं। तो अब जो है मेरी जो एक ग्लोबल कप है जो ये हमारा चैनल है अशफाक साहब है, इसके ज़रिए से कम्युनिटी के जो भी बॉडीज़ हैं हमारे जो ट्रस्ट हैं और जो भी हम जहाँ भी हम लोगों ने अपने लिए कम्युनिटी की फलाह के लिए जो इदारे बनाए हुए हैं तो उन तक आवाज़ अगर पहुँच रही होगी तो मैं उन्हें बताता चलूँ कि हमें अब तमाम चीज़ों को दोबारा से सही तरीके से लाइन अप में लाना पड़ेगा। हम इसे ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकते इनफरादी यानी कि चाहत के लिए या इनफरादी प्रमोशन के लिए या अपनी पसंद नापसंद के लिए। चैरिटी और ट्रस्ट का जो बुनियादी मकसद है जो पूरी दुनिया में है, जो लोग हमसे बहुत पीछे थे पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान के वक्त जो लोगों की कोई पहचान नहीं थी, आज वो पाकिस्तान लेवल पर नहीं इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को मनवा चुके। और हम लोग जो उस वक्त सबसे आगे होते थे हम आपस के तनाज़ात का शिकार हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने असल जो चैरिटी का मकसद था, जो हमारे असासाजात हैं या जो हमारा चैरिटी में यानी सरमायादार जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं जो गरीब, बेवा, यतीम, तालिब इल्म के लिए सर्व करता है, वो उनके लिए सर्व करता है और वो उन्हें देके भूल जाता है और उसका सिस्टम ऐसा होता है ताकि वो आगे से आगे बढ़कर लोगों के लिए बेहतरी ला सके। जबकि हम इसके बरक्स इस राह पर चल पड़े हैं कि हमने किस चीज़ से काबिज रहना है और किस चीज़ से कंट्रोल रखना है। अब ये हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे जो रिटायर्ड सर्विसेज के लोग हैं उन्हें इसके अंदर दोबारा से आना पड़ेगा और जो लोग सिर्फ मेडल की तलाश रख के बैठे हैं कि हमें मेडल लगे, हम बड़ी ऊपर कुर्सियों में बैठे, अब उनसे निकलना पड़ेगा थोड़ा सा माज़रत के साथ। ये अब नौजवानों की आवाज़ है, इसे रोकना हमारे लिए सबके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप आगे आएँ, बढ़ें, कुछ आगे बढ़ के करें। तो